Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are present with the lecture number 4. The course is CSC 271 Database Systems. Let's review what we covered in the last lecture. We talked about ANSI Spark 3-level architecture. We talked about the 3 levels. What are the 3 levels? External level, conceptual level, and internal level. Then we learned that how these different levels are interconnected with each other and how they are basically translated or how they are interlinked through different using mappings. And then we talked about the instances in our last lecture, and finally we learned a very important topic, that was data independence, because data independence is one of the key objectives of the ANSI 3-level ANSI Spark 3-level architecture. So let's start with this lecture. If we talk about DBMS, as you know, DBMS is a software that handles all the access to the database. जो भी इंटरेक्शन हमने डेटाबेस के साथ करनी है वो सारी की सारी DBMS के थ्रू हैंडल की जाएगी. So as we discussed in our last lecture, that there will be certain languages that will be basically used to interact with the database, and basically any kind of interaction will be basically through DBMS. So there are certain database languages. So we will talk about these languages. There is a term data sub-language, and I will define that term later on. But a data sub-language could basically can consist of 2 parts: DDL, data definition language, and DML, data manipulation language. So whenever we want to describe or define a database object or entity, we will talk about, we have already talked about these things in detail, and in future lectures we will keep on talking about these things as well. So whenever we want to define something, then we will be using DDL. And keep in mind that all the basically interaction that is basically with the data definitions, or if you want to create data definitions, that will be done with the help of DDL. So DDL, we will go into the details of DDL, what DDL can do, and how it will be helping to define basically different metadata or data definitions. Then the second part is DML, data manipulation language. So whenever we will be interacting with the data, then we will be using DML, and I will define that what kind of operations will be performed through DML. Keep in mind that data sub-language basically does not include all the constructs, suppose for basically that are included in 3rd generation languages like we have C, C++, Java, or other languages. So we don't have facilities in data sub language for such constructs, like if we talk about C, C++, or Java, we have iterations, we have loops in it. So there is no facility, such facility in data sub language. We have conditional statements. We if one condition is true, then we can perform
one thing and one operation, and if the condition is false we can go for an alternative operation. So these kind of facilities are not basically included in data sublanguage. But keep in mind that data sublanguage is basically used to basically interact with the database, and any kind of interaction. I will explain these things in detail. So whenever these data sublanguage is used with high level languages, it is basically embedded in those high level languages. Maybe if you are writing an application program and you write that application program maybe in C or C++ or Java, and you want to connect with the database, or basically you want interaction with the database, then you will be embedding this basically data sublanguage into a high level programming language. So the high level programming languages in which we will be embedding these data sublanguage, so they are sometimes called host language. So this is a term that you need to learn. What is a host language? Suppose if you insert some DML or DDL portion in a Java application or Java program or C or C++ program, then the C or C++ or Java, it will be called a host language. Okay, let's briefly explain data definition language. What is data definition language, and what kind of facilities does it provide? If we go through the definition of DDL, it allows the DBR user to describe and name entities, attributes and relationships required for the application. अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि बेसिकली हमारा जो डेटाबेस है, डेटाबेस किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होगा? मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास वहाँ पे कुछ एंटिटीज़ होंगी, उन एंटिटीज़ के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और उनके आपस में कुछ रिलेशनशिप होंगे. तो वेन एवर यू वांट टू डिस्क्राइब द डाटा and you want to describe those entities, the attributes and the relationship, definitely you will be using DDL plus any associated integrity or security constraints. हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट किस्म के हमारे पास इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं या सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं. तो जो चीज़ें भी इस किस्म की हमने डिफ़ाइन करनी है वो सारी की सारी हमने DDL के थ्रू डिफ़ाइन करनी है. अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि मिसाल के तौर पे हम एक स्टूडेंट एंटिटी है, जैसे मैं पिछले अपने लेक्चर्स में भी एग्जांपल देता रहा हूँ ये कि जी हम एक स्टूडेंट की एंटिटी के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन कैप्चर करने में इंटरेस्टेड हैं. तो अब एक स्टूडेंट एंटिटी के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे उसका नेम, उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस और मे भी बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन जिसमें भी हम इंटरेस्टेड हो सकते हैं. तो जब भी हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैप्चर करना चाहते हैं, तो जब हमने उसको स्कीमा डिफाइन करना है या उसको DBMS के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, तो we need to basically use DDL to define that particular entity along with its attributes and कॉन्स्ट्रेंट्स. और कॉन्स्ट्रेंट्स अगर आपको याद हो, आई होप के जी एंटिटी क्या हो गई, स्टूडेंट एंटिटी हो गई, जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो नेम और ये बाकी सारी चीज़ें जो उस एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ये उसके एट्रीब्यूट्स हो गए. और कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं, हमने कहा था कुछ हमारे स्पेसिफिक कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे और कुछ हमारे जनरल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं कि मिसाल के तौर पे जो नाम होगा वो दैट विल कंटेन ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ नेम्स. ठीक है जी, वो हमारी हमने डोमेन की भी बात करेंगे आगे जाके. तो जो भी उसके लिए पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, या कुछ ऐसे सर्टन चेक्स, मिसाल के तौर पे जी कि वो स्टूडेंट विल ऑलवेज इनरोल्ड इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक ख़ास डिपार्टमेंट उसका होगा, और
अब डिपार्टमेंट के अंदर वही वैल्यूज आ सकती हैं जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं, कि मसलन जी अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, तो वही वाले डिपार्टमेंट्स उधर आएंगे। उसके अलावा ये नहीं है कि मसलन एक आपका डिपार्टमेंट जो है वो अर्थ साइंसेज का आ जाता है तो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और एक उसके टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स में एक स्टूडेंट का डाटा इस तरह आ रहा है कि उसकी तमाम इंफॉर्मेशन आ रही है, प्लस उसके डिपार्टमेंट में जो है वो अर्थ साइंसेज आ रहा है, और अर्थ साइंसेज का कोई जो है वो बेसिकली डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। तो देन बेसिकली आपका जो ये रिकॉर्ड होगा ये एक करेक्ट रिकॉर्ड नहीं होगा, या एक बेसिकली इसमें इंटीग्रिटी की वायलेशन हुई है कि डाटा आपका इंटीग्रिटी की वायलेशन हुई है कि जी वो डाटा आपका करेक्ट या एक सही फॉर्म में मौजूद नहीं होगा। अब इन चीज़ों को हम आगे भी प्रैक्टिकली भी अगले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। सो इस टाइम तक फ़िलहाल इतना ही समझ लें कि जब भी हमने कोई भी डाटा डेफिनेशंस के साथ काम करना है या कोई भी चीज़ें डिफ़ाइन करनी है, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड डाटा डेफिनेशंस। तो डाटा के साथ जब भी इंटरेक्शन करनी है उसके लिए हम DML यूज़ करेंगे, और जब भी डाटा डेफिनेशंस के साथ हमने कोई काम करना है, चाहे उनको डिफ़ाइन करना है, चाहे उनको मॉडिफाई करना है, चाहे उनको डिलीट करना है, तो उसके लिए हम DDL यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पे आपकी सीखनी ज़रूरी है कि जब भी हम बात करते हैं जी कि हमेशा डेटाबेस अप्रोच में दो चीज़ें होती हैं, एक डाटा होता है और एक डाटा डेफिनेशंस होती हैं। तो जो डाटा डेफिनेशंस हैं वो बेसिकली वो दे आर प्लेस्ड इनटू अ रिपोजिटरी दैट इज़ कॉल्ड system catalog, and sometimes there are alternative names that are used for basically this term. So data dictionary, data directory या system catalog, ये तमाम जो terms हैं ये alternatively basically मुख्तलिफ text books में या इस literature में जो है वो database के हवाले से जितना भी आपको मिलेगा उसमें आप जो है वो इसको ज़रूर देखेंगे। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि जितनी भी डाटा डेफिनेशंस हैं दे आर प्लेस्ड इन अ सिस्टम कैटलॉग, और समटाइम्स डाटा डिक्शनरी भी इसको कहा जाता है। तो अब डाटा डिक्शनरी, जैसे हमने कहा था कि डाटा बेस अप्रोच में डाटा भी होता है और डाटा डेफिनेशंस भी होती हैं। तो डाटा डेफिनेशंस को बेसिकली कौन एक्सेस करेगा? अगर देखा जाए तो पहले ये चीज़ शायद जो पुराना था DBMS उसमें कोई ऐसा वो था कि आप ये बेशक यूज़र को एक्सेसिबल ना हो, क्योंकि ये बड़ा ही क्रिटिकल चीज़ है। ये स्कीमा बेसिकली या उसकी डेफिनेशन है, एंड इफ़ यू चेंज इन स्कीमा देन it may affect the whole basically the database system। तो इस वजह से जो है इसमें हमें देखना पड़ता है। लेकिन कीप इन माइंड कि जब भी DBMS कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या कोई भी एक्टिविटी डाटाबेस के हवाले से परफॉर्म होगी तो दिस सिस्टम कैटलॉग विल बी कंसल्टेड, कि जी अगर फ़र्ज़ करें हमने किसी जो है वो किसी भी जो है एंटिटी की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, मसलन हमने स्टूडेंट्स तमाम की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो ये बेसिकली इस सिस्टम कैटलॉग के अंदर डिफाइंड होगी कि ये इस नाम की एंटिटी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। फिर अगली बात कि जी कौन सा यूज़र है वो जो है इस एंटिटी को एक्सेस करना चाह रहा है, तो उस यूज़र की डिटेल्स भी सारी उधर पड़ी हो सकती हैं। फिर हमने बात की थी कि आया कि इस यूज़र को अथोराइजेशन भी है, जो ऑपरेशन वो परफॉर्म करने जा रहा है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने की अथोराइजेशन भी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम कैटलॉग में पड़ी होंगी। इसके अलावा अगर इस पर थोड़ा सा हम गौर करें तो सिस्टम कैटलॉग के साथ कोई एंड यूज़र्स बेसिकली कोई उनका कनेक्शन नहीं बनता, क्योंकि एंड यूज़र्स के बारे में हमने कहा था कि दे आर नॉट बेसिकली, दे डोंट हैव टू मच टेक्निकल नॉलेज, दे विल बी यूजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और through application programs they will be interacting with the database। तो
फिर और कौन सा यूजर है जो बेसिकली, एक तो हमने कहा जी कि DBMS अपने जितने भी ऑपरेशंस होंगे उसको परफॉर्म करने के लिए वो इस सिस्टम कैटलॉग को यूज करेगा। इसके अलावा DBA जो होता है वो एक और जो है वो यूजर हो सकता है जो बेसिकली इस सिस्टम कैटलॉग के साथ इंटरेक्ट करे, ताकि वो कोई भी डेफिनेशंस या उनकी डेफिनेशंस में मॉडिफिकेशन करना चाहता है, कोई स्ट्रक्चर चेंज करना चाहता है या कोई और इस किस्म की मॉडिफिकेशन करना चाहता है, और वो एक अथोराइज्ड पर्सन है जिसको इस सारे बेसिकली जो है इस चीज़ की एक्सेस होगी। इसके अलावा आपके सोफिस्टिकेटेड यूजर्स जो हैं दे माइट बी आल्सो यूजिंग दिस डाटा डिक्शनरी और सिस्टम कैटलॉग। लेकिन हम इस चीज़ को आगे जाके भी बड़ी तफसील से देखेंगे कि क्या क्या जो है वो इसके अंदर कंटेंड होता है और मज़ीद इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा जो मेटा डाटा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जी मेटा डाटा क्या है। मेटा डाटा इज डाटा अबाउट डाटा या डाटा दैट डिस्क्राइब डाटा और डाटा डेफिनेशंस। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप जो है ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो कि आप इसके हवाले से जो है वो डिफ़ाइन इसको करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिकली यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन थ्री थिंग्स नाउ, राइट। The first is what is data and what is metadata or data definition. So metadata वो है जो डाटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ भी हमने सीख ली कि जी सिस्टम कैटलॉग या डाटा डिक्शनरी क्या है, जहाँ पे ये सारे जो मेटा डाटा है या डाटा डेफिनेशंस हैं वो सारी पड़ी होंगी। वो कहाँ पे पड़ी होंगी, वो बेसिकली आपकी सिस्टम कैटलॉग में पड़ी होंगी। तो ये दो तीन चीज़ें हमने नई जो टर्म्स हैं जो डाटाबेस के हवाले से वो हमने सीख ली। अब इन टर्म्स को समझना और इनके दरमियान फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो मे भी बहुत सारे आगे जैसे बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें होती है दैट इफ़ दे आर नॉट क्लियर टू यू देन क्या होगा कि जो आपके आगे वाले टॉपिक्स हैं वो शायद इन टर्म्स को यूज़ कर रहे होंगे, तो फिर अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो मे बी आपको उनमें भी थोड़ा सा मसला आएगा। ओके जी, जो दूसरा हमारा जो पार्ट था डाटा सब लैंग्वेज का वो था DML। और जैसे हमने कहा जी DDL इज कंसर्न मोस्टली विद ऑल डाटा डेफिनेशंस, या वो मेटा डाटा के साथ जितना भी काम है वो सारा का सारा हम किसके थ्रू करेंगे, DDL के थ्रू। लेकिन DML जो है इट provides basic data manipulation operations on data that is held in the database। तो अब जितने भी ऑपरेशंस हम डाटा के ऊपर करेंगे वो हम किसके थ्रू करेंगे, वो DML के थ्रू करेंगे। अब अगर आपको मेरे पुराने लेक्चर्स थोड़े से अगर याद हों तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि एक डाटाबेस के ऊपर बेसिकली कौन से ऐसे ऑपरेशंस है जो कि परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो मतलब लॉजिकली अगर हम चीज़ों को डिफाइन करें, आई रिपीट अगेन कि जी फ़र्ज़ करें कि हमारे पास अभी कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई फाइल ही नहीं है जिसके अंदर हमने डाटा स्टोर करना है। तो हमने कहा था जी वन DDL ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म इज़ के वी कैन क्रिएट एन एम्प्टी फाइल के जी जिसके अंदर हमने फिर रिकॉर्ड्स बहुत सारे स्टोर करने हैं, डाटा स्टोर करना है। तो सपोज वी क्रिएट एन एम्प्टी फाइल, या जिसको हम बाद में आगे देखेंगे कि हम टेबल भी कहेंगे या रिलेशन कहेंगे, रिलेशनल टर्मिनोलॉजी में जाके। तो हमने एक रिलेशन या टेबल क्रिएट किया या फाइल क्रिएट की जिसका नाम स्टूडेंट है, और मे बी उस स्टूडेंट के अंदर हम बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं जिसके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने में, लाइक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर और ये सारी चीज़ें। अब जब हमने वो स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, वो फाइल हमने डिफाइन कर दी, नाउ what kind of operations we can perform कि जी हम एक particular इंस्टेंस और अक्रेंस ऑफ दैट एंटिटी की इंफॉर्मेशन को जो है हम जो है इंसर्ट कर सकते हैं। कि मिसाल के तौर पे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है अली, उसका फादर नेम है शाहिद, उसके जो एड्रेस कोई भी है इस्लामाबाद का, उसकी बाकी सारी इंफॉर्मेशन वो एक रिकॉर्ड हम उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक और जो ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म किया जा सकता था वो इंसर्ट रिकॉर्ड का था। लेकिन कीप इन माइंड अब ये जो इंसर्ट रिकॉर्ड है दैट इज कंसर्न्ड विद डाटा, इट्स नॉट कंसर्न्ड विद डाटा डेफिनेशन। सो जो पहला ऑपरेशन था कि हमने एक एम्प्टी
जो फाइल क्रिएट की या एक वो जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया वो बेसिकली वो DDL से कंसर्न था, लेकिन जो इंसर्ट रिकॉर्ड है दैट इज कंसर्न विद DML। इसी तरह DML के और ऑपरेशंस हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक रिकॉर्ड हमारे पास अली का पड़ा हुआ था, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उस रिकॉर्ड में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अली का जो है वो एड्रेस चेंज हो गया तो हम उसी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसमें कोई चेंज कर देंगे। हम अली मज़ीद हमारे पास जो है वो यूनिवर्सिटी में वो किसी और यूनिवर्सिटी में चला गया, हमें उसका रिकॉर्ड अब मज़ीद नहीं चाहिए तो हम उसके रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। और इसी तरह हम जो सबसे कॉमन ऑपरेशन है, लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि वो आपका डाटा रिट्रीवल का ऑपरेशन है कि जी आप बहुत सारा डाटा है आपके पास और आप उसको एक्सेस करते हैं। तो ये 4 ऑपरेशन हैं जो कि आपके DML से जो है वो मोस्टली कंसर्न्ड है। तो अब DML को अगर फर्दर हम स्प्लिट करें तो इसको मज़ीद 2 जो है वो कैटेगरीज में स्प्लिट किया जा सकता है। वन इज़ प्रोसीजरल DML और द सेकंड वन इज़ नॉन प्रोसीजरल DML। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल DML। प्रोसीजरल DML, अगर आपको याद हो तो अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सेमेस्टर में मोस्ट प्रॉब्ली प्रोग्रामिंग भी पढ़ रहे होंगे, तो आप जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं उसमें भी बहुत सारी जो है वो आप में से बहुत सारे लोगों ने जो प्रोसीजरल लैंग्वेज की जो है वो डेफिनेशन शायद आपने पढ़ी हो कि ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर किसी भी प्रोसीजर को डिफाइन किया जा सके कि जी कोई भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो वो आप उसके सारे स्टेप्स बताएंगे कि किस तरह वो जो है वो ऑपरेशन या वो प्रोसीजर परफॉर्म होगा। तो अब जो प्रोसीजरल DML है, इट अलाउज द यूजर्स टू टेल सिस्टम एग्जैक्टली हाउ टू मैनिपुलेट डाटा। कि जी अगर हमने कोई मैनिपुलेशन करनी भी है तो यू हैव टू टू टेल द प्रोसीजर एज वेल, ठीक है जी। तो इसमें जो आपके ऑपरेशंस होते हैं दे आर बेसिकली परफॉर्म्ड ऑन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, आपके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के ऊपर ये परफॉर्म करता है। और टिपिकली मतलब ये जो आपके प्रोसीजरल DML हैं ये बेसिकली एम्बेड की जाती हैं दूसरी हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर। और जितने भी पुराने, और कीप इन माइंड कि ये जो प्रोसीजरल DML है इसका ताल्लुक जो है वो नेटवर्क और हायरार्किकल जो वो डाटा मॉडल्स या उनके साथ है, जो हमने ऑलरेडी हिस्ट्री जब हम DBMS की या DBMS को हम डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम हमने इनको देखा था। तो ये अब जो है ये वहाँ पे इसका ज़्यादा इस्तेमाल है। अब इसमें चूँकि ज़्यादा काम, चूँकि इसमें हमने ये भी डिफाइन करना है कि अगर डाटा की मैनिपुलेशन करनी है तो वो कैसे करनी है। और हमने कहा जी कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के ऊपर जो है वो ये प्रोसेसिंग होती है या आपका जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें जो ज़्यादा काम होता है दैट इज़ ऑन द एंड ऑफ द यूज़र। और इसमें एक आम डेफिनेटली जो यूज़र है वो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये खास ही यूज़र होगा जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में इसको एम्बेड कर रहा होगा, तो वो बेसिकली मोस्ट प्रॉब्ली प्रोग्रामर होगा। अब जो नॉन प्रोसीजरल DML है, नॉन प्रोसीजरल DML में हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि कैसे बेसिकली जो है वो आपने वो डाटा एक्सेस करना है या उसको मैनिपुलेट करना है। तो जो नॉन प्रोसीजरल DML होती है इट ओनली टेल्स के जी और स्टेट्स के जी व्हाट डाटा इज रिक्वायर्ड और नीडेड रादर देन हाउ इट इज टू बी रिट्रीव्ड। हमें वो प्रोसीजर डिफाइन नहीं करना पड़ता या वन बाय वन जो रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं करना पड़ता, बल्कि इस जो स्टेटमेंट या इसके थ्रू नॉन प्रोसीजरल DML के थ्रू हम बहुत सारा बल्क में डाटा, मल्टीपल रिकॉर्ड जो है या सेट ऑफ रिकॉर्ड जो है हमें जो है वो रिट्रीव हो जाते हैं या हमारा जो भी ऑपरेशन है उससे रेलेवेंट वो हो जाता है। तो कीप इन माइंड कि जी जब भी हम नॉन प्रोसीजरल DML यूज़ करते हैं तो हमारा इट ऑपरेट्स ऑन सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। अब अगर इसको देखें तो रिलेशनल DBMS जो है वो इसकी एक फॉर्म को जो नॉन प्रोसीजरल DML है उसको यूज़ करते हैं। और जो हमारे इस कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो कि हम सीखेंगे इसमें, वो है SQL स्ट्रक्चर्ड
क्यूरी लैंग्वेज। इसी तरह QBE इज ऑल्सो बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोसीजरल DML, जो कि क्यूरी बाय एग्जाम्पल है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ किया हो तो उसमें भी जो है वो एक जस्ट क्लिक्स के थ्रू बेसिकली आप वो डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो होपफुली हम अपने प्रैक्टिकल पोर्शन में इसको शामिल करेंगे। अब जो प्रोसीजरल लैंग्वेज के मुकाबले में, DML के मुकाबले में, ये जो नॉन प्रोसीजरल DML होती है, दैट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, क्योंकि जी इसमें एक जो आम निस्बतन जो थोड़ा कम टेक्निकल नॉलेज भी है वो लोग भी इसको सीख सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जबकि देखा जाए तो प्रोसीजरल जो DML है उसमें थोड़ी ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि उसमें आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि किस तरह रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया जाएगा और उनके ऊपर कोई भी जो मैनिपुलेशन है वो फिर आप कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इसमें यह भी होता है कि आपका जो ज़्यादा काम है दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय DBMS, और यूज़र ने जस्ट वो जो स्टेटमेंट है वो नॉन प्रोसीजरल की वो अप्लाई जस्ट वो स्टेटमेंट जो है वो सप्लाई करनी होती हैं। अब नॉन प्रोसीजरल DML का एक और मेजर जो एडवांटेज है वो ये भी है कि इट प्रोवाइड्स कंसिडरेबल डिग्री ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस, कि जी आपको जो है वो आपको बहुत सारा काम नहीं करना पड़ता कि जी कैसे बेसिकली वो उसको रिट्रीव किया जाएगा या कैसे वो डाटा रिट्रीव होगा, वो सारा आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता, बल्कि DBMS आपके लिए वो जो है वो सारा काम करता है। तो नॉन प्रोसीजरल DMLs को समटाइम्स दे आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस, ये टर्म भी इसके लिए यूज़ की जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसी तरह कुछ एक और जो हमारी लैंग्वेजेस जिनको हम 4th जनरेशन लैंग्वेजेस भी कहते हैं, हम इनके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे कि जो 4th जनरेशन लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। 3rd जो जनरेशन लैंग्वेजेस हैं उसमें आपकी ये सारी जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो सारी आ जाती हैं, जैसे C++, जावा और ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो आपकी 3rd जनरेशन में आती हैं। तो जो 4th जनरेशन लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इसके ऊपर क्लियर कंसेंसस नहीं है कि जी किसको हम 4th जनरेशन लैंग्वेज कहेंगे। लेकिन 4th जनरेशन लैंग्वेज के बारे में हम इतना कह सकते हैं जी कि मसलन जो काम 3rd जनरेशन लैंग्वेज के अंदर मसलन उसके लिए हमें बहुत सारी लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ती थी, वो शायद बहुत कम लाइन ऑफ कोड लिख के वो हो जाएगा। और ये भी एक तरह का नॉन प्रोसीजरल हमें जो है वो फीचर जो है वो प्रोवाइड करेंगी कि हमें प्रोसीजर्स खुद से नहीं डिफाइन करने पड़ेंगे, बल्कि हमारी 4th जनरेशन लैंग्वेजेस जो हैं वो हमें खुद से ही जो है वो प्रोसीजर्स की डिटेल जो है वो खुद ही प्रोवाइड करेंगी, और जो यूज़र के एंड पे जो है वो काम बहुत जो है वो लिमिटेड हो जाएगा, जो कि 4th जनरेशन लैंग्वेजेस के अंदर ये फीचर प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि किस किस्म की ऑप्शंस हो सकती हैं हमारे पास, तो फॉर्म जनरेटर्स हो सकते हैं जी। फॉर्म जनरेटर्स बहुत सारे अवेलेबल है, जिसमें आप जब भी डेटाबेस के साथ अपने इंटरेक्शन करनी है और कोई इनपुट या आउटपुट या डिस्प्ले के लिए बेसिकली आपने यूज़ करने हैं फॉर्म्स को, तो वो फॉर्म्स जस्ट आप उनको यूज़ करते हो और वो ऑटोमेटिकली फिर डेटाबेस की फील्ड्स के साथ उनको मैप आप कर देते हो और वो ऑटोमेटिकली फिर उस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और आप इनपुट के ऊपर वैलिडेशन भी लगा सकते हो कि जी जो डाटा करेक्ट हो रहा है वो करेक्ट फॉर्मेट में है जो डेटाबेस के अंदर है या नहीं। इसी तरह रिपोर्ट जनरेटर्स हैं, वो उसके थ्रू आप आप जो है वो बिल्कुल इजी वे में जो है वो आप रिपोर्ट्स भी जनरेट करवा सकते हो। और रिपोर्ट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है कि डेटाबेस में बहुत सारा डाटा होता है और उस डाटा को फिर रिपोर्ट्स की फॉर्म में, जैसे हम तमाम उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना चाहें कि जिनका CGPA खास 3.5 या उससे ज़्यादा आया है, या हम ऐसे तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना चाहें जिनके अटेंडेंस से खास परसेंटेज से कम है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के एनवायरनमेंट में आपके हायर ऑफिशियल्स को या उनको जो भी लोग उस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं उनको रिक्वायर्ड हो सकती हैं। इसी तरह ग्राफिक्स जनरेटर्स भी जो है वो 4th जनरेशन लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आते हैं कि जी आपके पास डेटाबेस में डाटा है और उस डाटा से ऑटोमेटिकली जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो वो चार्ट्स हैं वो बन जाएं, चाहे वो बार चार्ट है या पाई चार्ट है या कोई और डिफरेंट किस्म का स्कैटर्ड
किस्म का है, वो इस किस्म का जो डेटाबेस से डाटा ले और उसकी बेस के ऊपर जो है आपको वो चार्ट्स जनरेट कर दे। इसके अलावा जो एप्लीकेशन जनरेटर्स हैं ये भी 4th जनरेशन लैंग्वेज के अंदर आते हैं, और इसमें भी बेसिकली आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको जो है वो आसानी के साथ जो है वो जो बेसिकली जो है विदाउट हैविंग टू मच टेक्निकल नॉलेज जो है उसकी बेस के ऊपर जो है वो आप एप्लीकेशन प्रोग्राम बड़ी क्विकली जो है वो डेवलप कर सकते हो, और उसमें ऑलरेडी कुछ रिटन मॉड्यूल्स होते हैं और लाइब्रेरीज होती हैं जिनको यूज़ करके वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो जनरेट कर देता है। तो इसी तरह 4th जनरेशन लैंग्वेज के अंदर भी SQL और QBE जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया कि, और हमने यहाँ पे भी कहा कि जो 4th जनरेशन लैंग्वेजेस हैं ये बेसिकली आपकी इस चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगी कि हमारा जो हमें ये ना बताना पड़े कि वो काम कैसे करना है, बल्कि हमें जस्ट बताना पड़े कि हमने क्या काम करना है। तो SQL और QB could be an example of 4th generation language as well. DBMS जिसका हम बहुत ज़्यादा तज़किरा कर रहे हैं, और DBMS इस कोर्स और ओवरऑल डेटाबेस सिस्टम का एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने पिछले, लेकिन एक DBMS को क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म या प्रोवाइड करने चाहिए, ये बेसिकली जो है ये है हमारा अगला टॉपिक के जी, एक DBMS के क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए तो DBMS वो कहलाएगा। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला फंक्शन है DBMS का, दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द DBMS, दैट इज डाटा स्टोरेज, रिट्रीवल एंड अपडेट। इट मींस कि जी आपकी जितनी डाटा मैनिपुलेशन DML है, वो डाटा मैनिपुलेशन जितनी भी है ऑपरेशंस हैं, जिसमें चाहे वो डाटा स्टोर करना है, रिट्रीव करना है या अपडेट करना है, इस हवाले से जितने भी ऑपरेशंस हैं वो आपके DBMS को प्रोवाइड करने चाहिए। और ये बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है जो कि आपका या फंक्शन है जो कि DBMS को और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो DBMS को परफॉर्म करना पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो DBMS को प्रोवाइड करना चाहिए वो है अ यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जब हम डिस्कस कर रहे थे सिस्टम कैटलॉग को, तो हम बात कर रहे थे कि जो सिस्टम कैटलॉग है दैट शुड बी एक्सेसिबल टू द यूज़र, और मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि वो कौन से यूज़र होंगे जिनको ये जो है वो बेसिकली एक्सेसिबल होगी। तो एक तो मैंने आपको ये बताया था कि जो DBMS है वो अपने किसी भी ऑपरेशन के लिए जो है वो इस कैटलॉग को वो एक्सेस करेगा और इसको कंसल्ट करके अपने तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, क्योंकि जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनके एट्रीब्यूट्स, उनके रिलेशनशिप्स और कंस्ट्रेंट्स, यूज़र्स, उनके एक्सेस राइट्स, ये सारी डिटेल जो है ये मोस्ट प्रॉब्ली आपकी इस कैटलॉग के अंदर मौजूद होंगी। तो अब यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग की जब हम बात करते हैं तो मैंने उस टाइम भी डिस्कस किया था कि जो DBA होगा या आपका सोफिस्टिकेटेड यूज़र होगा, मोस्ट प्रॉब्ली दे विल बी इंटरेस्टेड टू इंटरेक्ट विद दिस बेसिकली कैटलॉग। इसके अलावा जो एंड यूज़र होगा उसका कोई इतना ज़्यादा ख़ास कंसर्न नहीं होगा इसके साथ। इसके अलावा हमारे पास ट्रांजैक्शन सपोर्ट है। ट्रांजैक्शन कोई भी, जब हम डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई भी जो एक ऑपरेशन है या एक यूनिट ऑफ वर्क है उसको हम ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। इसको हम बहुत डिटेल से आगे जाके देखेंगे, लेकिन कीप इन माइंड कि जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है डेटाबेस के ऊपर तो अब वो या तो कंप्लीटली परफॉर्म होना चाहिए या फिर वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पार्शली होगा तो फिर क्या होगा कि आपका डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा और वी विल नेवर बेसिकली लाइक दिस सिचुएशन। क्योंकि हम डेटाबेस अप्रोच तो हमने यूज इसीलिए की थी कि जी आपका जो आपका डाटा है वो कंसिस्टेंट रहे, और इस किस्म की सपोर्ट भी फिर हमें हमारे DBMS को इस किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन के हवाले से सपोर्ट मिलनी चाहिए। कॉन्करेंसी कंट्रोल सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कॉन्करेंसी क्या है, कि व्हेन मल्टीपल यूजर्स आर एक्सेसिंग द डेटाबेस, या कोई भी एक डेटाबेस को जब मल्टीपल लोग एट अ टाइम जो है वो एक्सेस कर रहे हैं तो देर आर चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट है कि ये एक कोई रीड कर रहा है, एक राइट कर रहा है, तो फिर
क्या होगा, या दो लोग एट अ टाइम राइट करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से जो है वो किस तरह उसने इस चीज़ को, डाटा को एक कंसिस्टेंट वे में जो है वो रखना है, वो जो है वो कंकरेंसी कंट्रोल सर्विसेज के थ्रू ही जो है वो अचीव हो सकता है। इसी तरह another function that is provided by the DBMS is recovery services। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो DBMS हमारा डेटाबेस है दैट कुड क्रैश फॉर सेवरल रीजंस, ठीक है जी, कि हमारा डेटाबेस जो है वो बहुत सारी रीजंस की वजह से वो क्रैश कर सकता है। कोई हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, या कोई सॉफ्टवेयर फेलियर हो सकता है, या कोई और कोई इस हवाले से जो है वो इशू हो सकता है। तो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो रिकवरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके अलावा एक और मेजर फीचर और फंक्शन ऑथराइजेशन सर्विसेज के जी कौन सा यूज़र है और उसको क्या क्या अथॉरिटी है, कौन कौन से ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकता है, ये चीज़ भी जो है वो एक ऑथराइजेशन सर्विसेज के थ्रू जो है वो अचीव की जाएगी। सपोर्ट फॉर डाटा कम्युनिकेशन, जब आप एक मल्टी यूज़र डेटाबेस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आपका हो सकता है कि आप नेटवर्क पे काम कर रहे हो, तो नेटवर्क के ऊपर जितनी कम्युनिकेशन होगी वो सारी फिर जो है उसको हैंडल करने के लिए ये वाला फंक्शनैलिटी जो है वो DBMS को प्रोवाइड करनी ज़रूरी है कि कैसे नेटवर्क के ऊपर जो है वो मैसेजेस जाएंगे और कैसे उसके रिस्पॉन्स में डाटा आएगा, ये सारी चीज़ जो है वो इस फंक्शन के थ्रू सपोर्ट की जाती है। इसके अलावा हमने इंटीग्रिटी सर्विसेज की ऑलरेडी हमने इंटीग्रिटी को काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है कि आपने करेक्टनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द डाटा को इंश्योर करना है, और वो कौन इंश्योर करेगा, जो भी रूल्स आप डिफाइन करेंगे वो DBMS विल इंश्योर के जी उन रूल्स को, इंटीग्रिटी रूल्स को वायलेट नहीं किया जाता। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि हमारे डेटाबेस अप्रोच का भी था कि हमने डाटा इंडिपेंडेंस को प्रमोट करना है कि जी हमारा जो है अगर हम कोई एक किसी लोअर लेयर्स में चेंज करें तो जो अपर लेयर्स हैं वो आपकी अनअफेक्टेड रहें, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको DBMS जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा बहुत सारी यूटिलिटीज़ जो है वो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं किसी भी DBMS के, जैसे आप एक फ्लैट फाइल है उसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी रिलेशनल डेटाबेस में या किसी और में, तो ये आप कर सकते हैं। या आपकी एक रिलेशनल डेटाबेस की फ़ाइल है और आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सिंपल फ्लैट फाइल के अंदर, तो ये फैसिलिटी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू मिलती है। इसी तरह आप इंडेक्सेस को रीऑर्गेनाइज करने के लिए आपकी यूटिलिटीज़ होती हैं, आपकी बैकअप के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की यूटिलिटीज़ होती हैं। इसी तरह आपकी जो मॉनिटरिंग के लिए कि डेटाबेस के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, कौन कौन कनेक्टेड है, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है एंड सो ऑन, वो सारी जो एक्टिविटीज़ मॉनिटर करने के लिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो यूटिलिटीज़ हो सकती हैं जो कि वेरी करती हैं फ्रॉम DBMS टू DBMS। ये तो थे हमारे फंक्शंस जो कि नॉर्मली हमें कोई भी DBMS प्रोवाइड करेगा। अब हम ये देखते हैं कि एक DBMS जो है वो किन किन एनवायरनमेंट में या कौन कौन से ऐसे एनवायरनमेंट हैं जिनमें वो बेसिकली जो हम यूजुअली जो है जिनको देखते हैं। तो अगर ब्रॉडली इसको कैटेगराइज किया जाए तो दो पॉसिबल एनवायरनमेंट्स हैं जिसमें हम एक DBMS को पाएंगे कि जी एक हमारा सिंगल यूज़र जो है वो एनवायरनमेंट है और एक हमारा मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट है। और जो सिंगल यूज़र है इट्स वेरी क्लियर कि सिंगल यूज़र से मुराद ये है कि जब आपका डेटाबेस का एक ही यूज़र है और उसी ने उस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है। अब अगर आप फंक्शंस आप DBMS को देखें तो आप देखेंगे कि जो सिंगल यूज़र के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फंक्शंस हैं वो शायद सिंगल यूज़र DBMS के लिए अवेलेबल ना हो या वो बेसिकली उनकी हमें ज़रूरत ना पड़े। जैसे है ही एक यूज़र तो हमने कोई नेटवर्क के ऊपर तो नहीं करना, वो तो एक स्टैंड अलोन PC के ऊपर है, तो देयर इज़ नो नीड फॉर सपोर्ट फॉर डाटा कम्युनिकेशन कि जी आपने नेटवर्क के ऊपर वाला काम नहीं करना। इसी तरह अगर आप देखें तो कंकरेंसी कंट्रोल
की सर्विस में भी हमें सिंगल यूज़र में नहीं चाहिए होगी। कंकरेंसी कंट्रोल तो आती है उस टाइम में जब आपके मल्टीपल यूज़र्स हों और वो एट अ टाइम जो है वो उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो भी हमें नहीं चाहिए होगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी सर्विसेज हो सकती हैं जो शायद हमें उसके अंदर सिंगल यूज़र के अंदर ना चाहिए हो। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जब भी हम एक डेटाबेस की बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस की बात करते हैं, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मल्टी यूज़र DBMS एनवायरनमेंट, और वहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स होंगे जो उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डेटाबेस है वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि जो मल्टी यूज़र हमारा DBMS एनवायरनमेंट है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या जो है वो आर्किटेक्चर्स यूज़ होते रहे हैं। तो उसमें हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म के आर्किटेक्चर हम ब्रॉडली उनको कैटेगराइज कर सकते हैं 3 के अंदर। जो पहला है हमारा वो टेली प्रोसेसिंग है, उसके बाद हमारे पास फाइल सर्वर आर्किटेक्चर है, और फाइनली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। तो हम थोड़ी थोड़ी इनकी डिटेल्स देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या जो है वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, या किस तरह वो बेसिकली जो है ये मल्टी यूज़र DBMS एनवायरनमेंट इन आर्किटेक्चर्स को यूज़ करता था। टेली प्रोसेसिंग जो है ये ट्रेडिशनल जो है वो आपका एनवायरनमेंट है, मल्टी यूज़र DBMS एनवायरनमेंट है। तो इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो देयर इज़ अ सेंट्रल कंप्यूटर, और बाकी जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे इस सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं। तो अब ये जो आपके कंप्यूटर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं जो इस सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, दीज आर कॉल्ड टर्मिनल्स, और मोस्ट प्रॉब्ली ये क्या होंगे, ये डम टर्मिनल्स होंगे। ये डम टर्मिनल से ये मुराद होती है कि इनकी कोई अपनी प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी नहीं होती, या मोस्ट प्रॉब्ली स्टोरेज की भी नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन ये जितनी भी प्रोसेसिंग या स्टोरेज है वो आपके जो है वो सेंट्रल कंप्यूटर की यूज़ कर रहे होंगे। ये जस्ट इनपुट या आउटपुट बेसिकली जो है इनके फंक्शंस जो है इन डम टर्मिनल्स में अवेलेबल है। तो जो DBMS है वो भी आपका कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर। तमाम जो डेटाबेस है वो भी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन और जो ये सेंट्रल कंप्यूटर है वो मोस्ट प्रॉब्ली जो पहले ट्रेडिशनल की हम बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे, या कोई भी एक ऐसा कंप्यूटर जो है वो इतने सारे क्लाइंट्स जो भी उसके क्लाइंट्स हैं उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अब इस टेली प्रोसेसिंग का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि चूँकि आपका सारा जो DBMS है प्रोसेसिंग है वो सारी सेंट्रलाइज्ड इसके ऊपर हो रही है, सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर हो रही है, बाकी तो सारे डम टर्मिनल्स हैं। इसी तरह स्टोरेज भी उधर है। तो अब जो सारी बर्डन है प्रोसेसिंग का भी और बाकी जो ऑपरेशंस हैं चाहे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो सारा का सारा किसके ऊपर है, इस सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर है। तो ये इस हवाले से फिर जो यूज़र्स की तादाद बढ़ती जाती है तो वो डेफिनेटली फिर जो है ये आपका जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होती जाती है, अगर आपका जो ये सेंट्रल कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो ये एक इतनी ज़्यादा सूटेबल अप्रोच नहीं थी, क्योंकि ये पुराने बिल्कुल शुरू के ज़मानों की इसके डेटाबेस सिस्टम्स के हवाले से बात करें तो 1960s की अप्रोच है। तो ये अब मज़ीद जो है अभी आजकल यूज़ नहीं हो रही। अब इसमें हम देखें और वैसे भी आजकल देखें तो आपका जो ट्रेंड है वो डाउन साइजिंग की तरफ है कि जी मेन फ्रेम्स के रिप्लेस कर दिया है बहुत सारे मल्टीपल पर्सनल कंप्यूटर्स के नेटवर्क ने। वही काम जो एक मेन फ्रेम कर सकता था वो आजकल के बहुत सारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनको मिला के हम उनके थ्रू वो वाली जो है वो परफॉर्मेंस या वो वाले जो एबिलिटी है वो अचीव कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा आर्किटेक्चर है वो फाइल सर्वर आर्किटेक्चर है। फाइल सर्वर आर्किटेक्चर इसके बाद आया। तो फाइल सर्वर आर्किटेक्चर की डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको बहुत सारे जो वर्क स्टेशंस हैं दे आर कनेक्टेड विद द फाइल सर्वर, और ये एक आपका एक नेटवर्क है, आप लैन कह सकते हैं। फ़िलहाल इसको इतना ही कंसिडर कर लें कि जी आपके अब वर्क स्टेशन जो है वो
डम टर्मिनल से बहुत बेहतर होते हैं कि उनके अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वो बड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं। और इसकी ख़ास बात ये होगी कि जो हर एक वर्क स्टेशन है इसके ऊपर एक DBMS की कॉपी जो है वो रन कर रही होगी, और जो जितना भी आपकी फाइल्स हैं या डेटाबेस है वो सारी की सारी आपके फाइल सर्वर के ऊपर पड़ी होगी। तो अब जब भी आपने कोई ऑपरेशन डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करना है तो आप जो है वो फाइल सर्वर को एक्सेस करेंगे, और फाइल सर्वर वो सारा डेटाबेस जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आपको ट्रांसमिट करेगा और आपके लोकल वर्क स्टेशन के ऊपर, और फिर आपको जो भी उसमें से डाटा रिक्वायर्ड है वो आप ले लोगे। लेकिन इस अप्रोच का एक नुकसान ये है कि आपका नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंजेस्टेड या वो चौक रहता है, क्योंकि आपकी सारी, आपको अगर फर्ज करें एक एम्प्लॉयज़ का टेबल था और आपको तमाम एम्प्लॉयज़ में से किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के, और सपोज देयर आर 5000 रिकॉर्ड्स इन दैट टेबल, तो अब अगर आपको एक बंदे का रिकॉर्ड भी देखना है या दो का देखना है तो वो पूरी की पूरी एम्प्लॉय की जो टेबल है वो 5000 रिकॉर्ड्स के साथ वो सारा आपको ट्रांसमिट कर देगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपका जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो जाता है इसमें। अब इसके डिसएडवांटेजेस की जैसे मैंने डिस्कस किया कि नेटवर्क ट्रैफिक आपकी बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह हर वर्क स्टेशन के ऊपर एक DBMS की कॉपी इंस्टॉल्ड है। तो व्हाट डज इट मीन कि जी जो आपके वर्क स्टेशन है दे हैव स्पेसिफिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, तभी उसके ऊपर DBMS चल रहा है। और तीसरे जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर तो रिट्रीवल के ऑपरेशंस हैं तो फिर तो कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बाकी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और कॉन्करेंसी या रिकवरी या इंटीग्रिटी जो है दैट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज देर आर मल्टीपल DBMS इंस्टॉल्ड ऑन डिफरेंट वर्क स्टेशंस। तो फिर उन सारों को सिंक्रोनाइज करना जो है दैट इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स जॉब। तो ये जो है हमारे इसके डिसएडवांटेजेस में आता है। जो सबसे जो बेहतर अभी तक अगर हम देखें तो वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, जो कि अमूमन अभी भी जो है हमारा इस मल्टी यूज़र DBMS एनवायरनमेंट में यूज़ हो रहा है। आई होप कि आप लोग इससे शायद क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से फेमिलियर होंगे। इट्स वेरी सिंपल कि जी आपका क्लाइंट्स होते हैं और एक सर्वर होता है, और क्लाइंट का काम क्या होता है कि वो कुछ खास सर्विसेज रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर का काम क्या होता है कि सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड्स टू दोज क्लाइंट रिक्वेस्ट, और जो भी सर्विस किसी जो है वो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की होती है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि वेब सर्वर होते हैं वो, और जो वेब क्लाइंट होता है वो कोई उसको किसी पेज के लिए, जैसे आप कभी लिखें वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हो www.google.com, तो आप जो है आप जिस सिस्टम पे हैं आपका जो ब्राउज़र है वो एक क्लाइंट है, और एक वेब सर्वर एक और मशीन होगी जहाँ पे वो google.com पड़ा हुआ है। आपने जब उसको रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे google.com दे दो, तो वो सर्वर जो है वो वेब सर्वर जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा और आपकी जो भी आपने डाटा उससे रिक्वेस्ट किया है वो आपको वापस भेज देगा। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो जो बड़ा इस हवाले से बेहतर है कि इसमें जो आपका DBMS है वो सर्वर के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है, और जो आपका क्लाइंट है वो LAN या WAN के थ्रू जो है वो आपके उस सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ही रन हो रहे होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है इसको हम फर्दर जो है वो दो कैटेगरीज में सब डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है ये 2 टियर आर्किटेक्चर भी हो सकता है या 3 टियर आर्किटेक्चर भी हो सकता है। अब जो क्लाइंट है वो बेसिकली यूजर इंटरफेस और एप्लीकेशंस को मैनेज करता है, और जो आपका सर्वर है वो आपका डेटाबेस और DBMS को जो है वो होल्ड कर रहा होता है। तो इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं एज कंपेयर टू टेली प्रोसेसिंग या फाइल सर्वर आर्किटेक्चर, तो यू हैव वाइडर एक्सेस टू द एग्जिस्टिंग डेटाबेस
डेटाबेसेस के जी जितने भी आपके डेटाबेसेस हैं अब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है उनको एक्सेस कर पा रहे हो। योर परफॉर्मेंस हैज़ बीन इंक्रीज्ड क्योंकि अब आपका जो सर्वर है दैट इज़ अ स्पेशलाइज्ड मशीन और दैट कैन बेसिकली फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ मल्टीपल क्लाइंट्स। इसी तरह आपका जो हार्डवेयर कॉस्ट है वो आपकी कम होगी एज कंपेयर टू बोथ दी अर्लियर आर्किटेक्चर्स के, जिसमें आपके वर्क स्टेशंस भी बहुत हैवी किस्म के मशीन मतलब काफ़ी उनकी भी स्पेसिफिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स थी। तो अब यहाँ पे आपका क्लाइंट को इतना ज़्यादा जो है वो स्पेसिफिक हार्डवेयर नहीं चाहिए, उसके ऊपर जस्ट वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन हो रहे होंगे, बाकी सारा जो आपका स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर है वो एक ही है, वो सर्वर है आपका। इसी तरह आपकी कम्युनिकेशन कॉस्ट कम हो गई क्योंकि अब आपको सिर्फ उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना बेसिकली आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले उस फाइल सर्वर आर्किटेक्चर में देखा था कि अगर मुझे 5000 में से सिर्फ 3 लोगों का रिकॉर्ड्स को देखना है तो अब मुझे सिर्फ 3 लोगों का रिकॉर्ड ही मिलेगा, बजाय ये कि पिछले जैसे वो जो है पूरी की पूरी वो जो टेबल है हमें ट्रांसमिट किया जा रहा था नेटवर्क के ऊपर, तो उससे आपकी कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। और इसी तरह आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और वो कैसे इंक्रीज होगी? चूंकि आपका सारी जो मैनेजमेंट है वो एक सर्वर के ऊपर ही हो रही है, आपके जितने भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं वो जो है वो कहाँ पे डिफाइंड है, वो सर्वर DBMS और अब डेटाबेस भी आपका उधर ही है, तो वो उस हवाले से जो है वो उसमें आपका डाटा जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। जैसे मैंने कहा कि इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को मज़ीद आप 2 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। जो अभी हम देख रहे हैं ये 2 टियर आर्किटेक्चर है, तो इस डायग्राम के थ्रू जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि 2 टियर आर्किटेक्चर और 3 टियर आर्किटेक्चर में क्या फ़र्क होता है। अगर हम 2 टियर आर्किटेक्चर और 3 टियर आर्किटेक्चर को डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो पहले हम 2 टियर आर्किटेक्चर को देख लेते हैं कि जो 2 टियर है इसमें एक टियर जो है वो क्लाइंट की होती है और एक सर्वर की होती है। जो पहले आपकी टियर है, जो क्लाइंट टियर है, वो आपके यूजर इंटरफेसेस को और बिजनेस एंड डाटा प्रोसेसिंग लॉजिक को, मैंने आपको जैसे बताया कि क्लाइंट के ऊपर सिर्फ आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड होंगे और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बेसिकली कनेक्ट कर रहे होंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जो कि रिजाइड कर रहा है सर्वर के ऊपर, तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन बेसिकली जितनी भी जो डेटाबेस के साथ मैनिपुलेशन है वो होगी तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, लेकिन वो सारी सर्वर के ऊपर होगी। तो जो आपकी सर्वर साइड वाली टियर है उसमें सर्वर साइड वैलिडेशन है, आया कि इस एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी यूज़र इसको यूज़ कर रहा है बेसिकली उसको अथोराइज्ड भी है ये ऑपरेशन परफॉर्म करना या नहीं है, और जिस चीज़ को वो एक्सेस कर रहा है वो उस हवाले से भी जितनी कोई इनपुट्स वो दे रहा है तो वो आया कि जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है वो कोई इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा, और जितनी भी डाटा एक्सेस है वो सारी की सारी जो है वो इस सर्वर साइड से जो है इस टियर से बेसिकली जो है वो मैनेज होगी। 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब हम देखते हैं कि इस 3 टियर की ज़रूरत क्या थी। तो जो 2 टियर आर्किटेक्चर था अगर उसको हम देखें तो मतलब ये किसी भी ओपन स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर के ऊपर मैप कर सकता है कि जी हमारा कोई भी एक तरफ आपके कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है और दूसरी तरफ आपका एक सर्वर है जिसके ऊपर DBMS और आपका डेटाबेस है, तो वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब क्या इश्यूज थे उस 2 टियर आर्किटेक्चर के अंदर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि फिर 3 टियर आर्किटेक्चर जो है वो प्रपोज किया गया। तो पहली बात यह है कि जो 2 टियर आर्किटेक्चर था उसके अंदर जो आपका क्लाइंट था वो बहुत ज़्यादा फैट था। फैट से मुराद के उसके अंदर आपके एप्लीकेशन जो यूज़र इंटरफेस भी था और आपकी एप्लीकेशन जो बिजनेस लॉजिक थी और वो जो प्रोसेसिंग लॉजिक थी वो भी थी। तो अब वो काफ़ी आपका सिस्टम जो है वो उसके ऊपर वो थोड़ा सा आप इस तरह कह सकते हैं कि वो ओवरबर्डन कर रहा था आपके सिस्टम के ऊपर। तो इसी तरह जो दूसरा इशू था कि जी आपको क्लाइंट साइड के ऊपर भी जो है वो काफ़ी सारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपका ज़्यादा था कि आपको उन एप्लीकेशंस को देखना पड़ता था, उनको प्रॉपरली इंस्टॉल करना पड़ता था, और अगर किसी किस्म का कोई आपकी एप्लीकेशंस में इशू आ जाता था तो फिर आप जो है वो अगर लोकली वो इशू आ गया तो फिर आपको वो रिजॉल्व करना पड़ता था, अदरवाइज वो आप उस
उस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। तो 1995 में जो है वो 3 टियर आर्किटेक्चर जो है वो प्रपोज किया गया, जो कि थोड़ा सा 2 टियर से डिफरेंट है। इसमें 3 टियर्स हैं। हम देखते हैं कि इसको कैसे 3 टियर्स में जो है वो मैनेज किया गया है। अब इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमारे जो आर्किटेक्चर है इसको 3 टियर्स में डिवाइड कर दिया गया है। द फर्स्ट टियर इज क्लाइंट टियर, और क्लाइंट टियर इज जस्ट प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। नाउ जो आपकी बिजनेस लॉजिक है और डाटा प्रोसेसिंग लॉजिक है वो भी अब जो है वो एक और जो है वो टियर के अंदर सेपरेटली रख दी गई है, और वो आपकी सेकंड टियर है जिसको उन्होंने एप्लीकेशन टियर कहा है या एप्लीकेशन सर्वर कहा है। उसके अंदर अब ये आ गया, और जो आपका डेटाबेस है और जो आपकी डाटा वैलिडेशन है या डेटाबेस एक्सेस है जितनी भी, वो सारी की सारी आपकी थर्ड टियर के ऊपर आ गई है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो आजकल आपकी जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं इसको आप इस 3 टियर आर्किटेक्चर के साथ मैप कर सकते हैं कि जो आपका वेब ब्राउज़र होता है बेसिकली ये आपका क्लाइंट होता है, और आप उस क्लाइंट के थ्रू किसी भी किस्म की एप्लीकेशन को जो डेटाबेस के साथ बेसिकली इंटरेक्ट कर रही है उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब जो आप ब्राउज़र के थ्रू जो भी एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे वो बेसिकली किसी वेब सर्वर के ऊपर मेंटेन हुई होगी, और उस जो भी उस एप्लीकेशन को जिस लैंग्वेज में भी लिखा गया है, जो भी आपकी वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ हुई है, तो वो सारी जो चीज़ है कि कैसे वो जो आपके पेजेस डिस्प्ले होंगे, उनकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी, और वो सारी चीज़ें जो होंगी, और वो एप्लीकेशन के हवाले से या वो फिर कैसे उस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगी, वो सारी लॉजिक जो होगी वो आपकी उस एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर रिजाइड करेगी, जो कि आपके मोस्ट प्रॉब्ली वेब सर्वर होगा। और फिर आप जो अपना डेटाबेस सर्वर है उसको एक अलग मशीन के ऊपर मेंटेन कर सकते हैं कि फिर कैसे आपका एप्लीकेशन सर्वर के अंदर से वो जो एप्लीकेशन है वो किस तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को या डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करती है, और उस डेटाबेस में से सर्टन जो है वो कोई डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, या कोई भी डेटाबेस का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करें 3 टियर आर्किटेक्चर की, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की, तो अब आपका जो क्लाइंट साइड है वो बहुत ज़्यादा थिन क्लाइंट हो गया है कि उसके ऊपर कोई आपके बर्डन नहीं है। आपको सिंपल बस वो जो आपके बेसिक सा क्लाइंट आपको चाहिए, तो उस जिस तरह आपका वेब ब्राउज़र है, और यू विल बी रिक्वायरिंग वेरी लेस हार्डवेयर या इनएक्सपेंसिव जो है वो हार्डवेयर। इसी तरह आपकी एप्लीकेशन जो मेंटेनेंस है वो भी सेंट्रलाइज्ड हो गई। पहले ये था कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सिस्टम्स के ऊपर, सारे क्लाइंट्स के ऊपर इंस्टॉल्ड थी, तो आपको अगर उसको आप एप्लीकेशन में चेंजेस करते हैं तो आपको सारे जो आपके सिस्टम्स हैं उनके ऊपर दोबारा से जाके उसको री इंस्टॉल करना पड़ेगा या उसको अपडेट करना पड़ेगा। अब इसमें चूंकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपके एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर है, तो आप जस्ट एक जगह पे उसको चेंज करते हैं तो सारे लोग जो है वो उनको ऑटोमेटिकली जो है वो जो अपडेटेड कॉपी है वो मिल जाती है। इसी तरह इसमें भी जो आपकी डाटा इंडिपेंडेंस की तरह का कॉन्सेप्ट है कि आप एक टियर में कोई चेंज करते हैं तो दूसरी टियर्स जो हैं वो इससे इफेक्ट नहीं होती। तो ये एक और बहुत अच्छी जो फीचर है वो जो कि आपको 3 टियर आर्किटेक्चर आपको प्रोवाइड करता है। इसी तरह आपने जब बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस फंक्शंस को सेपरेट कर दिया तो इससे क्या हुआ कि आपकी थोड़ी सी लोड बैलेंसिंग होगी कि जो एप्लीकेशन सर्वर है वो बिजनेस लॉजिक को हैंडल कर रहा है और जो डेटाबेस मैनेजमेंट जो सर्वर है आपका वो आपके डेटाबेस के फंक्शंस को जो है वो बेसिकली वो परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह आपके सर्वर के ऊपर जो है वो लोड थोड़ा कम हो गया है। इसी तरह एग्जैक्टली आप जो वेब एक एनवायरनमेंट है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं 3 टियर क्लाइंट सर्वर के साथ। तो इसके अलावा भी बहुत सारी आप इन टियर्स को मज़ीद भी एक्सटेंड करना चाहें तो आप जो है वो कर सकते हैं, लेकिन जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं वो 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसमें कोई और मॉडिफिकेशन भी करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं।
जो आखिरी टॉपिक आज का मैं डिस्कस करूंगा वो है डाटा मॉडल के हवाले से। तो पहले हम ये देखते हैं कि डाटा मॉडल को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, लेकिन इस डेफिनेशन से पहले मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, चूँकि हम जो अपना कोर्स हम पढ़ रहे हैं ये है डेटाबेस सिस्टम्स, और हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का वो है कि हम किस तरह कोई डेटाबेस एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे और फिर उसको बाद में किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर हम कैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखेंगे जो कि उस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो जो डेटाबेस डिज़ाइन है ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव होगा हमारे इस कोर्स का, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना ये हमारा उसका प्रैक्टिकल जो पोर्शन में इंक्लूडेड होगा। तो जब भी हम डेटाबेस डिज़ाइन करने की बात करते हैं तो डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए आप फ़र्ज़ करें मैंने एक यूनिवर्सिटी का सिस्टम डिज़ाइन करना है, कि मैंने एक जो पूरी यूनिवर्सिटी है उसके सिस्टम को डिज़ाइन करना है, तो उसमें मुझे ये देखना पड़ेगा कि जी आपके क्या क्या ऐसी एंटिटीज़ उसमें इन्वॉल्व हैं, कौन सी उन एंटिटीज़ के ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं और उन एंटिटीज़ के आपस में क्या रिलेशनशिप है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन अपने पास कैप्चर करना चाहते हैं। तो हमने क्या करना होता है बेसिकली कि हमने उस तमाम इंफॉर्मेशन को एक ईजी टू अंडरस्टैंड वे में रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी डाटा मॉडल को यूज़ करते हुए। और फिर डाटा मॉडल भी हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के डाटा मॉडल्स हैं, लेकिन डाटा मॉडल बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन या उस सिस्टम के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अंडरस्टैंडेबल वे में रिप्रेजेंट करने का एक वे है। लेकिन हम देखेंगे कि हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के DBMS होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के डाटा मॉडल्स के ऊपर जो है वो बेस कर रहे होते हैं। तो हम फिर उसी हवाले से फिर अगर हमें पता हो कि हमने ये वाला स्पेसिफिक DBMS यूज़ करना है तो फिर हम हो सकता है कि हम उसी किस्म का जो है वो डाटा मॉडल जो है वो यूज़ करें। लेकिन अभी हम चूँकि डेटाबेस डिज़ाइन हम आगे कुछ जाके डिस्कस करेंगे तो फ़िलहाल हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। फ़िलहाल हम डाटा मॉडल्स जो भी हमारे पास कुछ चंद एक हम उनको जो है वो शॉर्टली देखेंगे कि कौन कौन से डाटा मॉडल्स हमारे पास हैं और डाटा मॉडल्स एक्चुअली होते क्या है। तो डाटा मॉडल को अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो इट्स इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स फॉर डिस्क्राइबिंग डाटा। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, डाटा से मुराद आपकी एंटिटीज़ हैं जिनके बारे में आप इंटरेस्टेड हो सकते हो, रिलेशनशिप्स बिटवीन दोज entities and constraints on those entities or data that belongs to a पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के आप एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो उसका डाटा मॉडल बनाना चाहते हैं कि जी उसमें क्या क्या डाटा इस्तेमाल होता है, उस डाटा का आपस में रिलेशनशिप क्या है, और उस डाटा के ऊपर उस ऑर्गेनाइजेशन से स्पेसिफिक जो है वो कॉन्स्ट्रेंट किस किस किस्म के हैं, वो सारे जो है वो आप इस डाटा मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। जैसे मैंने आपको पहले को जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो तो यू शुड नो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सम स्पेसिफिक थिंग, कि जी हम उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो जिस तरह हम डाटा मॉडल की बात कर रहे हैं तो डाटा मॉडल का क्या पर्पस है, तो डाटा मॉडल का पर्पस बड़ा क्लियर है। मैंने आपको बताया कि आप चूँकि एक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जितना भी आपका डाटा होगा या वो जितनी भी एंटिटीज़ होंगी उनके आपस में रिलेशनशिप होंगे, उनके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम होता है। तो इसको हमने एक अंडरस्टैंडेबल वे में रिप्रेजेंट करना है और उसके लिए हम कोई भी जो मॉडलिंग जो है वो हम टेक्निक यूज़ करेंगे या डाटा मॉडल यूज़ करेंगे। तो अब हम अगर देखें तो जो पर्पस है वो यही है कि हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उस इंफॉर्मेशन को जो जिसको या जिसके बारे में हम डाटाबेस डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, हमने उसको जो है एक अंडरस्टैंडेबल वे में रिप्रेजेंट करना है। और बेसिकली एक्चुअली ये उसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जैसे मैंने कहा कि चूंकि ये जो टॉपिक है दैट इज कंसर्न विद डाटाबेस डिज़ाइन, तो जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डाटाबेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो फिर हम उसके जो यूज़र्स हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं डाटाबेस डिज़ाइनर जो है। तो डाटाबेस डिज़ाइनर और जो यूज़र्स हैं उनके दरमियान जो एक क्लियर कम्युनिकेशन और अनएम्बिगुअस कम्युनिकेशन के लिए जो है ये बेसिकली डाटा मॉडल्स हैं ये काफ़ी हेल्पफुल
हो सकते हैं। हम आगे जाके जब हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो डेटाबेस डिज़ाइन जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि इट कुड बी क्वाइट हेल्पफुल, ताकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन है या उस ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए जो है, उसके सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए ये काफ़ी जो है हेल्पफुल हो सकते हैं। एक डाटा मॉडल जो है इट कंप्राइजेज ऑफ बेसिकली अ स्ट्रक्चरल पार्ट, जो कि उसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, बेसिकली उस डाटा मॉडल को उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगी। उसका मैनिपुलेटिव पार्ट है कि जी हाउ टू बेसिकली interact with different components of that data model, चाहे उसका डाटा है उसके साथ कैसे हम interact करेंगे, ये सारी चीज़ें मैनिपुलेटिव पार्ट में आ जाएंगी। एंड पॉसिबली अ सेट ऑफ इंटीग्रिटी रूल्स, और जैसे हम काफ़ी अब लेक्चर्स में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि हर जो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अपने सर्टन इंटीग्रिटी रूल्स हो सकते हैं कि जी जो उस ऑर्गेनाइजेशन से स्पेसिफिक हैं, तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी शुड रिफ्लेक्ट दोज ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक रूल्स इनटू आवर डाटा मॉडल, ताकि जब हम फिर उसको इम्प्लीमेंट करें तो वो रूल्स वहाँ पे भी मौजूद हों, और कोई भी ऑपरेशन जब उस डाटा के ऊपर किया जाए तो वो उन रूल्स को वायलेट ना करे। इसी तरह अगर हमने जो ANSI स्पार्क आर्किटेक्चर 3 लेवल आर्किटेक्चर पढ़ा था, तो उसमें भी हमारे पास जो मॉडल्स को देखा जाए तो हमारा एक्सटर्नल डाटा मॉडल है, ठीक है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर यूज़र को व्यू के बारे में बात करता है, और इसको समटाइम्स यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं। इसी तरह हमारा कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है, और कंसेप्चुअल डाटा मॉडल की खास बात यही है कि वो DBMS इंडिपेंडेंट होता है। हमने कहा था कि उसमें हमारी स्टोरेज कंसिडरेशंस नहीं होती, हम ये नहीं बात करते कि हम कौन सा DBMS यूज़ करेंगे एंड सो ऑन। और इसी तरह हमारा जो इंटरनल डाटा मॉडल है वो हमारा बेसिकली कि हाउ एक्चुअली डाटा इज स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर, हमारा बेसिकली ये इसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कीप इन माइंड कि जो आपका इंटरनल डाटा मॉडल होता है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, ठीक है जी, इससे वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली जो आपके एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल है वो बेसिकली वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कहाँ से बेसिकली करके ला रहे होंगे, वो इंटरनल डाटा मॉडल से ही ला रहे होंगे। तो इनकी आपस में मैपिंग जो है वो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। हम अगर हम कैटेगरीज की बात करें कि हमारे जो डाटा मॉडल्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करें, तो कौन कौन से हमारे पास डाटा मॉडल्स हैं, तो हमारे पास 3 मेजर कैटेगरीज में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। एक हमारे ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल्स हैं, जिसमें हम एंटिटीज़ की टर्म्स में बात करते हैं कि एंटिटीज़ या ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे उन ऑब्जेक्ट्स के या उन एंटिटीज़ के, और उन एंटिटीज़ के दरमियान में आपस में रिलेशनशिप क्या होगा। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी मेजर कैटेगरी है वो रिकॉर्ड बेस्ड की है, कि हम रिकॉर्ड्स के ऊपर बात करते हैं। इसमें भी इसी हवाले से होता है कि हम देखते हैं कि जी हमारे पास कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, और फिर उनके ऊपर हम देखते हैं कि उनका आपस में क्या रिलेशनशिप बनता है। और तीसरे हमारे जो है वो फिज़िकल डाटा मॉडल होता है। अब ऑब्जेक्ट बेस्ड को अगर फर्दर उसकी जो हम लिटरेचर अगर रिव्यू करें तो उसमें हमें बहुत सारे जो वो एग्जांपल्स हमें मिलेंगी, लेकिन ये चंद एक एग्जांपल्स हमने यहाँ पे कोट किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो डाटा मॉडल्स हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा मॉडल है वो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, जो कि हम इस कोर्स में बहुत डिटेल में उसको देखेंगे कि जब भी हम किसी डाटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम उसको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को। हम इसको आगे की स्लाइड्स में या अगले चैप्टर्स में बहुत डिटेल के साथ देखेंगे। ये हमारे कोर्स का एक मेजर कंपोनेंट है। सेमांटिक है, इसमें भी ये भी एक डाटा मॉडल है जो कि ऑब्जेक्ट बेस्ड है। इसी तरह फंक्शनल है, और जो सबसे अभी जो हमारी लेटेस्ट टेक्निक जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर बेस करती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल्स हैं। तो ये सारे जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड की कैटेगरी में आते हैं। जो रिकॉर्ड बेस्ड की कैटेगरीज की अगर फर्दर हम बात करें, जो सब कैटेगरीज है या उनके अंदर जो हम उसकी डिवीजन की बात करें, तो उसमें हमारे पास रिलेशनल डाटा मॉडल है, नेटवर्क डाटा मॉडल है,
और हायरार्किकल डाटा मॉडल है। तो हम जो जिस तरह रिलेशनल डाटा मॉडल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस हवाले से है कि हमारा जो कोर्स है उसका मेजर फोकस जो है वो इसी रिलेशनल डाटा मॉडल के ऊपर ही होगा, जबकि हमारे जो नेटवर्क डाटा मॉडल है और हायरार्किकल डाटा मॉडल ये हमारे पुराने जो हमारे जो मॉडल्स थे ये वो हैं, और ये मज़ीद अभी इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहे आजकल। या आपका रिलेशनल डाटा मॉडल यूज़ हो रहा है या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो है वो यूज़ हो रहा है। रिलेशनल डाटा मॉडल में बस इतना समझ लें कि आपका जो भी डाटा है दैट इज परसीव्ड इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, कि जी आपका टेबल्स की फॉर्म में डाटा को यूजर जो है वो परसीव करता है। लेकिन कीप इन माइंड ये जो कंसेप्चुअल या एक्सटर्नल लेवल तक की ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इंटरनल लेवल के ऊपर ये टेबल्स की फॉर्म में नहीं होता। तो मतलब अगर हम रिलेशनल डाटा मॉडल की बात करें तो ये दो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट टेबल्स हैं, एक ब्रांच का है एक स्टाफ का है। ब्रांच जो है वो ब्रांच के हवाले से इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है और जो स्टाफ है वो तमाम स्टाफ के बारे में इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहा है। इसी तरह हमारे पास नेटवर्क डाटा मॉडल भी है जिसमें मुख्तलिफ आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनका आपस में वो जो है वो रिलेशनशिप को वो डिफ़ाइन करता है मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स के दरमियान, और इसमें जो है ये नोड्स और सेट्स की फॉर्म में जो रिलेशनशिप हैं वो सेट्स के ऊपर, और ये जो है ये आपका बेसिकली ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट होता है। और अब मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन नेटवर्क मॉडल जो है ये बेसिकली हायरार्किकल मॉडल के बाद आया था, और जो हायरार्किकल मॉडल के अंदर कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी या जो ड्रॉबैक्स थे उनको बेसिकली वो कवर कर रहा था, जो कि हम देखेंगे कि जो हायरार्किकल मॉडल है उसके अंदर बेसिकली मैनी टू मैनी जो है वो उसको वो जो है वो रिलेशनशिप्स को बेसिकली सपोर्ट नहीं कर रहा था, जो कि नेटवर्क मॉडल के अंदर आया। लेकिन नेटवर्क मॉडल में स्टिल बहुत सारी जो लिमिटेशंस थी, और जिसकी वजह से ये अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहे। जो आजकल मोस्ट प्रॉब्ली जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका यूज़ हो रहे हैं वो रिलेशनल डाटा मॉडल है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल्स हैं। ये वही वाले दो स्टाफ और ब्रांच के टेबल हैं, उनको आप अगर आप क्लियरली देखें तो वही इंफॉर्मेशन जो है हमने उसी को इस नेटवर्क डाटा मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया है। और जो सबसे पहला जो 1960s में जो हमने हिस्ट्री में भी जब बात की थी, हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो उस टाइम जो पहला IBM का वो जो IMS था वो बेसिकली हायरार्किकल डाटा मॉडल को ही यूज़ कर रहा है, और ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और ये एक ट्री फॉर्मेट में वो जो अपसाइड डाउन ट्री है कि आपके जो ऊपर की तरफ जो है वो आपकी रूट है और फिर आगे उसकी ब्रांचेस हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये थी कि हर जो चाइल्ड है उसका एक ही पेरेंट हो सकता है, और चाइल्ड्स की भी आपस में कोई जो है अगर एसोसिएशन है भी तो वो हम इस मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, जिसकी जो वजह से फिर इसका जो नेटवर्क मॉडल है उसको प्रपोज किया गया था। सेम वही वाली इंफॉर्मेशन जो स्टाफ और ब्रांच की हम टेबल्स की हमने रिलेशनल मॉडल में देखी थी वही जो है वो इधर रिप्रेजेंट की जा रही है हायरार्किकल डाटा मॉडल के थ्रू। आखिरी जो हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है कंसेप्चुअल मॉडलिंग। कंसेप्चुअल मॉडलिंग जस्ट इसको मैं इसको डिफाइन करता हूँ और फिर हम अपने आज के लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कंसेप्चुअल मॉडलिंग इज़ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन यूज इन एन एंटरप्राइज दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। अब कंसेप्चुअल मॉडलिंग जो होगा ये आपका बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो वो डेटाबेस है वो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको इम्प्लीमेंटेशन जो डिटेल्स हैं वो उससे इंडिपेंडेंट होगा कि आपने इन चीज़ों को नहीं देखना कि वो एक्चुअली कैसे स्टोर्ड होगा, लेकिन ओवरऑल उस सारे ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब कीप इन माइंड कि इफ़ यू डू नॉट कम अप विद
कंप्लीट एंड एक्यूरेट कंसेप्चुअल मॉडल, तो जब आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली यू वोंट बी एबल टू प्रोवाइड ऑल द एक्सटर्नल व्यूज जो भी आपके डिफरेंट यूजर ग्रुप्स हैं। अगर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के तमाम यूजर ग्रुप्स को बेसिकली कवर ही नहीं किया तो फिर आप कैसे उनके लिए वो जो डिफरेंट आपके यूजर ग्रुप्स हैं उनके लिए जो एक्सटर्नल व्यूज हैं वो बेसिकली आप कैसे प्रोवाइड करोगे। तो आप कि बीइंग डेटाबेस डिजाइनर और डेटाबेस जो प्लानर है या डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यू हैव टू इंक्लूड ऑल द डिटेल्स फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उसके तमाम इंफॉर्मेशन जिन जिन एंटिटीज़ के बारे में वो इंटरेस्टेड हैं उसको कैप्चर करने में, या जो जो उनके प्रोसेसेस हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए जो जो डाटा हमें रिक्वायर्ड है वो सारा हमें इस जो है कंसेप्चुअल मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा। अब एक और चीज़ जहन में होनी चाहिए कि जो कंसेप्चुअल स्कीमा है दैट इज़ द कोर ऑफ बेसिकली ऑफ दिस सिस्टम, क्योंकि उसी को बेसिकली कन्वर्ट किया जाता है या मैप किया जाता है इंटरनल जो है वो लेवल के ऊपर, और उसी के थ्रू बेसिकली जितने भी यूजर व्यूज हैं, जो आपके एक्सटर्नल व्यूज हैं, वो सारे बेसिकली वो किस से बेसिकली डिराइव होते हैं या वो एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो आपके कंसेप्चुअल से होते हैं, और कंसेप्चुअल फिर किस तरह इंटरनल से वो उनको मैप करके वो रिकॉर्ड्स जो है वो उधर शो करता है। तो कीप इन माइंड कि जी आपका ये चीज़ें आपने जहन में रखनी होगी कि आपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है वो डेटाबेस डिज़ाइन करना है तो आपने उसकी तमाम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। अगले चैप्टर्स में जब हम डेटाबेस डिज़ाइन के हवाले से बात करेंगे तो हम फिर टेक्निक्स के ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा कंसेप्चुअल और लॉजिकल डाटा मॉडल में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस कहा जाता है कि जो लॉजिकल डाटा मॉडल होता है उसमें हम टारगेट DBMS के अंदर जो हमारा अंडरलाइंग मॉडल डाटा मॉडल यूज़ हो रहा होता है वो हम उसको कंसिडर करते हैं, जबकि कंसेप्चुअल में जो है वो हम जो है वो उसको कंसिडर नहीं करते। तो ये एक थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन बहुत सारी टेक्स्ट में जो बुक्स में जो है वो लिटरेचर में इन दोनों को अल्टरनेटिवली इन टर्म्स को यूज़ किया जाता है। समरी आज के लेक्चर की जो आज हमने कवर किया, इसमें हमने डेटाबेस लैंग्वेजेस के हवाले से बात की, हमने देखा DDL, DML, और हमने 4th जनरेशन लैंग्वेजेस के हवाले से भी बात की। हमने DBMS के फंक्शंस को बड़ा जो है डिटेल के साथ देखा कि क्या क्या फंक्शन एक DBMS जो है हमें प्रोवाइड करेगा। फिर हमने DBMS इन्वायरमेंट की बात की कि जी आपका DBMS इन्वायरमेंट सिंगल यूज़र में किस तरह एक स्टैंड अलोन या डेस्कटॉप जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या एक मल्टी यूज़र है उसमें क्या जो है वो फ़र्क हो सकता है। फिर मल्टी यूज़र के अंदर हमने टेली प्रोसेसिंग को डिस्कस किया, हमने फाइल सर्वर आर्किटेक्चर को किया, फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को डिस्कस किया, और क्लाइंट सर्वर के अंदर भी फिर हमने 2 टियर और 3 टियर को डिस्कस किया। इसी तरह फिर हमने डाटा मॉडल्स को डिस्कस किया और उनकी डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनको डिस्कस किया। लेकिन कीप इन माइंड कि ये जो डाटाबेस डिज़ाइन का प्रोसेस है हम बहुत डिटेल के साथ कवर करेंगे अगले अपने लेक्चर्स के अंदर। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।